Okay, so good evening, everyone. So let's discuss class 9th paper. So in the first question, so let's start with the first question. Okay, so in the first question, a car is traveling from A to B with the speed of this is speed. Then uh, it returns back with the speed of this, and then it is asking for the average speed. So we must remember this. It is a special type of question which we already discussed previously. क्या point था? If something is covering the same distance, suppose it covered a distance x and again it covered a distance x and with the speed v1 and v2, so we have directly the formula for v average. So we can use directly the formula for v average as 2 v1 v2 by v1 plus v2 when it covers the same distance. So in the question, what is happening? It is going to a certain point and it returns back. So it is going with the speed of 15 and it returns with the speed of 25. So at the end, it is covering the same distance. So that's why we can just use the formula 2 into 15 into 25 divided by the addition of these two, matlab 15 in plus 25. So like that we can proceed. So finally, if we solve the answer, it will be 18.75. So that's what our answer is. Then again, in question number 2, let's see. A car is moving on a straight road and it covers 1/3 distance with this speed and the rest with this speed. Then the average speed. अभी देखो, अभी नहीं हम कर सकते because it is not covering the same distance. So आपको याद होना चाहिए. Then we'll make a complete chart. ठीक है, पूरा चार्ट बनाते हैं हम और कैसे कवर करते हैं. सपोज पूरी डिस्टेंस इज समथिंग एक्स, सो क्या बोल रहा है 1/3. सो सपोज आई नो दैट द टोटल डिस्टेंस इज समहाउ एक्स, सो दिस इज एक्स बाई 3 डिस्टेंस एंड दिस वन विल बी, सो एक्स में से माइनस कर देते हैं एक्स बाई 3. हाउ मच इट विल रिमेन? इट विल रिमेन 2x/3. अगर मैं एक्स से x/3 माइनस कर देता हूँ. व्हाट आर द स्पीड ऑफ दीज टू सेक्शन? एक बार स्पीड है 20 और एक बार स्पीड है 60. सो देख लेते हैं. ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास स्पीड है एंड व्हाट वी नीड इज टाइम. सो टाइम क्या हो जाता है? टाइम अगर हमें चाहिए सो हम डिस्टेंस और स्पीड कर सकते हैं. मतलब क्या हो जाएगा? x/3/20 करेंगे. सो इट विल बी 3 इंटू 20. सो इट विल बी 3 इंटू 20. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x/3 इंटू हाउ मच? इट विल बी 60. सो इस तरीके से हम वी एवरेज यहाँ पे निकाल सकते हैं. देन वी एवरेज विल बी, क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज स्टिल x बट द टाइम इज, इट इज x/60 है, प्लस इसमें थोड़ा सा डिवाइड करेंगे 2, सो इट विल बी x/90. सो व्हाट वी कैन डू नाउ, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. सो एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूँ, 60 और 90 का एलसीएम आएगा 180. सो दिस विल बी, 60 से ऐसे डिवाइड करेंगे 180 को, इट विल बी 3. सो देयर इट विल बी 3x and it will be 2 times, this will be 2x. x is above. So इसका मतलब अगर हम सॉल्व करें सो 180 टॉप पे जाएगा मल्टीप्लाई में. सो x into 180 is there, divide by 3 plus 2, it is 5x. So we can do, just x will be cancelled out and it will be 180 divided by 5. So the answer will be 36. So that's how we can proceed. These two are totally different questions. The first one we can use with the direct formula, and the second one we can solve with a part wise. So मैं already practice sheet में और classroom में काफ़ी सारे ऐसे question discuss किए. Still अगर किसी को doubt है, so you can text me or you can go through those lecture जिसमें हमने starting में average speed के बारे में discussion किया हुआ है. Let's see the third one. So a train has a speed of this for first 4 hour and then this for next half hour. So again the two parameters are given, then it means we need to solve for both the parameters. So देखिए पहले speed कितना given है. speed कुछ इस तरीके से, first 4 hour, so मतलब sorry, first 1 hour, so first 1 hour, then next half hour. half hour मतलब
0.5 आर, ये हो गया टाइम। सो टाइम हमें गिवन है, फिर क्या गिवन है, स्पीड हमें गिवन है, स्पीड इज हाउ मच, इट इज 60 एंड इट इज 40. So what else is needed? We have speed, we have time, the remaining part is distance. So how we can calculate distance? Distance is actually speed into time. So we'll multiply 6 into 1, the answer will be 6 kilometer. Then 14 to 0.5, so answer will be 20 kilometer. So now we can use the average speed. So we average is total distance, that is 60 plus 20 upon total time, that is 1 plus 0.5. So it will be 60 plus 20, it is 80 divided by 1.5. So अभी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट नीचे जाएगा, ऊपर डिवाइड में आ जाएगा, एंड फाइनली आफ्टर सॉल्विंग वी विल हैव 53.3 एज आंसर. Okay, next let's see the fourth one. क्वेश्चन में गिवन है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस शीट में भी डिस्कस किया. सपोज एक ट्रेन है और उसका लेंथ ऑलरेडी कुछ है 200 मीटर, बट एक ब्रिज है. सो ये एक टाइप का ब्रिज है, और ये जो ब्रिज है वो 720 मीटर है, और ट्रेन को क्रॉस करना है. सो क्रॉस करना मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच जाए, ये क्रॉसिंग नहीं हुई. क्रॉसिंग होगी जब इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है ये यहाँ पर पहुंच जाए. दैट मीन्स ट्रेन आपको इस तरीके से दिखे, दिस विल बी कॉल्ड द क्रॉसिंग. सो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी उसे, 700 plus 20, so it will be 920 meter actually. So this much distance it has to cover. So time is equal to कितना हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो 920 डिवाइडेड बाय स्पीड इज हाउ मच, 36. अभी प्रॉब्लम ये किलोमीटर पर आवर है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर. सो रिमेंबर 36 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई 5/18. सो आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड. So it means we do not need to divide by 36 because unit mismatch है ना, ये मीटर है और वो 36 किलोमीटर पर है, so we need to convert it in meter per second. So then answer will be 92 seconds. Okay, then question number 5. So question number 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेमी सर्कल में एक पार्टिकल मूव हो रहा है. सो सेमी सर्कल मतलब इस तरीके से मूव हो रहा है. सो हमने ड्रॉ कर दिया, ये पार्टिकल जो है सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिया, ये उसका सेंटर है. ये पूछा हुआ है द एवरेज स्पीड. सो हमें पता है कि यार अगर एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, सो एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना, ये डिस्टेंस मतलब ये रेड कलर जो ये है, इसको डायरेक्ट अप्रोच को तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना. सो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ कर दिया ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है. सो डिस्टेंस कितनी होती है, पूरी डिस्टेंस होती है 2πr, मतलब उसका हाफ. सो मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर जितनी होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर, जबकि डिस्टेंस कितनी है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r. बट हमें क्या पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है. सो वी एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम करना पड़ेगा. सो पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड. नाउ पाई इंटू आर कितना है, इट इज 10 मीटर रेडियस डिवाइड 5. तो आंसर कितना आ जाएगा, 2π जितना आ जाएगा. ये एवरेज स्पीड हुई. लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता, व्हाट इफ एवरेज वेलोसिटी पूछता, सो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते, सो डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में 2r है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 5. सो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5. सो ये कितना हो जाता है, एक्चुअली ये 4 आ जाता. बट बिकॉज क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ पूछा हुआ है एवरेज स्पीड, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करना था. सो ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर होगा. 6-1. ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक
बुलेट है और उसने कुछ स्पीड कवर की, सपोज हमने उसे v स्पीड से थ्रो किया और वो कहीं x डिस्टेंस पर जाकर रुक गई, ठीक है, या लेट्स से u स्पीड से थ्रो किया और वो x डिस्टेंस पे जाके रुक गई, फाइनल स्पीड 0 है। सो रिमेंबर, अगर उसकी स्पीड u/2 कर दें, दैट मीन्स उसकी स्पीड हाफ हो गई है, सो कितनी दूर जाकर रुकेगी? सो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। हमें पता है जितना टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स ऑफ x आएगा, मतलब कितना आएगा? x/4। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन कि फ्रॉम दिस स्पीड टू बिकम हाफ हाउ मच इट हैज कवर्ड? इट हैज कवर्ड 4.5 सेंटीमीटर। सो प्रॉब्लम इज कि ये 4.5 सेंटीमीटर और ये जो x/4 है, ये पूरा मिला के क्या है? x है। x मतलब टोटल है ना, ये x तो पूरी टोटल है। सो इसका मतलब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि यार ये जो 4.5 है और प्लस ये x/4 है, ये पूरा मिला के टोटल भी x है। तो इसका मतलब 4.5 और ये x से माइनस हो जाएगा x/4। सो x माइनस x/4 एक्चुअली क्या बचेगा? 3x/4। ओके, सो अभी सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाई 3। सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 3 मतलब 1.5, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 1.5। ये x आया। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, x तो पूरा आंसर है, जबकि हमें क्या आंसर देना था? x/4 देना था। हमारा आंसर हाउ मच फर्दर इट विल गो। सो इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं था, हमारा आंसर था हाउ मच फर्दर इट विल गो, मतलब हमें आंसर देना था x/4 का। x/4 मतलब ये 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा सिर्फ। सो इट विल बी 4.5 डिवाइडेड बाई 3। सो इट इज 1.5 सेंटीमीटर। सो फर्दर इट विल गो बाई 1.5 सेंटीमीटर। अगर इसमें किसी को ज़्यादा डाउट रहता है तो हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ये आप एक बार लेक्चर रिव्यू कर सकते हैं। फुल डाउट रहता है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ओके, सो अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 कवर करता है। सो इट इज स्टार्टिंग विद रेस्ट, मतलब u क्या है? 0 है। सो वी नो s1 इज अ डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, सो ut इज 0। हाउ वी गॉट दिस? कि यार हमें डिस्टेंस पूछा है और टाइम गिवन है, मतलब हमें सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। सो यू टी तो 0 है बट एस वन इज फॉर 10 सेकेंड, सो इट विल बी हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50 इंटू ए। दिस इज अवर एस वन फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड। अभी अब हमें नेक्स्ट 10 सेकेंड चाहिए, तो रिमेंबर क्या नेक्स्ट 10 सेकेंड का ऐसे निकालना टफ हो जाता है। सबसे बेस्ट मैनर आप सीधा 20 सेकेंड लिए निकाल दो। सो फॉर 20 सेकेंड कितना हो जाएगा और उसमें से 10 सेकेंड का माइनस कर देंगे। सो फॉर 20 सेकेंड let is as dash, so ut will again be 0 and this will be half into a into t is 20 का square, so it will be 200a। so this is 200a। अब कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज नॉट s2। s2 क्या है? s2 है नेक्स्ट 10 सेकेंड में। सो हमें पता है कि यार फर्स्ट 10 सेकेंड में 50 ट्रेवल किया, टोटल 20 सेकेंड में 200 किया, सो दैट मीन्स डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकेंड कितनी हो जाएगी? आफ्टर फर्स्ट 10 सेकेंड ये जो 200 है उसमें से माइनस करेंगे, सो s2 विल बी 200 a minus 50a। so how much it will be? It will be 150a। so s1 is nothing but 150a। so from comparison we can see here s1 था 50a and s2 is 150a, so we can write s2 as 3 times of s1। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं सॉल्विंग करके।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, S1 एंड S2 दोनों आपको फोकस करना है। गलती नहीं कर देना है कि आप जो है S2 को समटाइम्स डायरेक्टली आप कर लेते हो 4A टाइप, सो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ध्यान देना है। S2 को 4A जैसा नहीं समझना है, ये एक S डैश है, एक नई क्वांटिटी है विच इज़ फॉर 20 सेकेंड। सो मैं इसका फिगर बना के बता देता हूँ। कुछ ऐसा हो रहा है, पहले 10 सेकेंड में 10 उसने कवर किया 50A, और स्टार्ट से पूरा एंड तक में 20 सेकेंड में उसने कवर किया पूरा 20 सेकेंड तक में 200A। सो इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो कितना है, वो 150A है। और यही हमारा पार्ट है कि ये फर्स्ट 10 सेकेंड है और ये नेक्स्ट 10 सेकेंड है। इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। ओके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 देन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पता है कि वेलोसिटी गिवन है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि वेलोसिटी से गेस करना पड़ता है एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी इज 4t क्यूब माइनस 2t। सो यू नीड टू गेस कि यार एक्सेलरेशन क्या होगा, हुज डिफरेंशिएशन इज दिस। सो यू मस्ट रिमेंबर यार t टू द पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 4t क्यूब होगा, माइनस टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2t होगा। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू चेक हुज डिफरेंशिएशन इज v, बिकॉज हमें पता है कि v को डिफरेंशिएट कर, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, देन वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ v। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट, 4 विल रिमेन एज इट इज, t क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, माइनस 2 विल रिमेन एज इट इज और t का क्या हो जाएगा 1। सो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 12t स्क्वायर माइनस 2। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, एट t इज इक्वल टू 1। सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब t की वैल्यू रख दो 1। सो 1 रखेंगे क्या आ जाएगा 12, आंसर विल बी 10। सो a विल बी 10। तो इसमें हमें रिवर्स नहीं कैलकुलेट करना, हमें स्ट्रेट ही कैलकुलेट करना था। स्ट्रेट क्या होता है, s से डिफरेंशिएट करते v से डिफरेंशिएट करते a आ जाता है। सो हमें v दिया था, a निकालना था, तो डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में गिवन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। सो मुझे पता है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा v क्या होता है ds बाई dt। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर अगेन फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, वो क्या होता है डी बाई डी टी। इसका मतलब v का भी डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो 2 विल रिमेन एज इट इज एंड t का हो जाएगा 1। सो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया 2। सो वी नो दैट देयर इज नो टाइम, यहाँ पे ऐसा कुछ t वगैरह नहीं है, इसका मतलब v एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज, सो इट इज जस्ट अ पॉजिटिव constant. So it is not retarding, it is just a constant value. So it will be constant. कांस्टेंट मतलब एक नंबर है, अगर सोचो मैं t लिख देता इसके साथ में t स्क्वायर लिख देता कुछ, सो t इज इक्वल टू 0 रखते सो आंसर आता 0, t इज इक्वल टू रखते तो आंसर आता 2, t इज इक्वल टू 2 रखते सो आंसर आता 8। तो मतलब वेरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, बट बिकॉज देयर इज नो t दैट मीन्स इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड है, u दिया है हमें, क्वेश्चन रीड करेंगे, u दिया है इनिशियल स्पीड इज 10 एंड एक्सेलरेशन की जगह क्या दिया है रिटार्डेशन, मतलब क्या लेना है नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस मूव्ड इन 8th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ओके, so the initial velocity we have retardation, distance moved in 8th second। so remember 8th second मतलब s nth का फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो एस nth का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला रहता है। सो u हमारे पास 10 है प्लस
यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्चुअली -2 है, डिवाइडेड बाई 2, 2n-1, सो 2 इंटू एन क्या है 8th, मतलब 8 -1। सो हम एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं s8th। सो क्या पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 1 आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, दिस विल बी 16 माइनस 1 मतलब 15, सो 8 माइनस 15 टाइप बचेगा। सो इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -5. Okay, so this will be -5, but I guess there is a question mistake in it, because the initial velocity of a particle is 10 and its retardation is 2. So actually अगर retardation नहीं होता, acceleration होता, then answer would be +5. So answer क्या आता, 15 आ जाता if the 25 आ जाता, if the question was accelerating, बट क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, रिटार्डिंग बोल दिया है, सो इसलिए नो ऑप्शन मैचेस। सो बेसिकली ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, द क्वेश्चन शुड हैव बीन एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2। ओके, सो द क्वेश्चन शुड हैव बीन इट्स रिटार्डेशन, instead of retardation it should have been its acceleration is 2, then it would be 25. So answer 25 आता, but for now the answer is 5, -5. So I'll write if A was +2, then आपका S8th का आंसर आ जाता 25 मीटर। So because this was a question mistake, so this question will be considered as a bonus question. So you can check your results now. I'll update your results. You will get a bonus on question number 10. Now, question number 11 then. Okay, so a car is having a uniform speed, so its initial U is 20. Okay, after covering a distance of 10 meters, so distance it covered during the stop is 10 meter. Okay, then the acceleration, so we have U, we have distance, what else we need, it stops actually. So stops means एक चीज हमें already पता चल जाती है, that final speed is 0. So we have distance, we have U, we have V, what we can find is using the third equation, or we could have used the direct formula for stopping distance. Remember direct formula for stopping distance, so that formula was U square upon 2A. So as we know that the stopping distance is 10 is equal to U was 20, so 20 square divided by 2 into A. So we could have find this A from here also. So ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, सो A की वैल्यू आ गई 20। अभी देखो प्रॉब्लम ये गलती क्या होगी, स्टूडेंट आंसर कर देता है +20 या -20। सो एज वी नो इट स्टॉप्स, स्टॉप्स का मीनिंग ये है कि एक्सेलरेशन किस टाइप का है, रिटार्डेशन टाइप का है। सो एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिटार्डेशन। सो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम प्रोसीड करेंगे। सो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, -20 आंसर आएगा। ये तो जस्ट हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सो इफ आई राइट यूजिंग, सो इफ आई राइट यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, सो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो as we know the final speed is 0, u square is 20 square, that will be 400 plus 2 into a into s is 10 meter. So that means a will come this side, so it will be -400 divided by 20. So the answer will be -20. So like that also we could have solved. Okay, so that's how the question number 11 was. सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस शीट में और नोट्स में डिस्कस किए हुए हैं, आप एक बार फिर से कर
नोट्स फॉलो कर सकते हैं, बेटर रहेगा. Okay, so we have v is equal to 20 minus 0.6 t. Now it's asking for acceleration. So because all the options are regarding the acceleration. So as we know, acceleration is differentiation of speed. So let's differentiate. 20 will be 0, 0.6 will remain as it is, or t का answer आ जाएगा 1. So what will be the acceleration then? Minus 0.6. So as we know, there is no t. यहाँ पे t वगैरह नहीं है. That means it is not variable. It is uniform or constant, but it is negative. That means it is a retardation. So it is uniform or constant. It is uniform or constant, but retardation. So we can use the term retardation here. Let's see question number 13 then. Okay, so body mass दिया हुआ है हमें. देख लेते हैं डेटा क्या क्या पता है हमें. m is equal to given है 10 kg और हमें दिया हुआ है velocity 10 meter per second है. When a force is applied for 4 seconds, it moves in opposite direction. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट u लेट्स से पॉजिटिव 10 है. सो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल स्पीड है वो 2 नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट इसे 2 लिख देंगे. नहीं, इट इज एक्चुअली -2 बिकॉज इट इज इन opposite direction and time taken is 4 seconds. So we can use the acceleration formula. It is v minus u by t, but all with the proper sign. So u is -2, u is 10 divided by time is 4. So it will be -3 meter per second square. This is our acceleration. So the acceleration is asked only. So there is no use of this mass. अगर force पूछता, if force पूछा होता, so we know the formula of mass into acceleration. So we could have used this formula if the force was asked. So then the use of mass will be there. So the answer will be 30 Newton. The negative explains that it will be in opposite direction. Okay. 14 number. So a car moving with this velocity can be stopped by a force in 20 meter. What will happen if it was moving with a speed different? So ये हमारा वही concept हो गया stopping distance का. क्या कि अभी speed है 10 मीटर पर सेकेंड. So अभी speed है 10 मीटर पर सेकेंड. So ये finally stop हुआ. How much distance it covered? It took 20 meter to cover this. Next step में हमें क्या करना है? हमें पता है that next step में speed has changed. So if I see the final speed 0, speed has become 25. So remember the term n. n क्या होगा? What is actually n? What we multiplied here? So actually we multiplied by 10 से 25 आने के लिए we multiplied 5 by 2. कैसे find किया? We just made it 25 divided by 10. So it will be 5 by 2. So our n is 5 by 2. So the answer here should be 5 by 2 का square times 20. So this is our answer for the stopping distance. So it will be 25 divided by 4 into 20. So it will be 125 meter. So ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का. हमने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लासरूम में भी डिस्कस किए हैं और टेस्ट में भी हमने सॉल्व कर लिया है. 15 नंबर. लेट्स डायरेक्टली x दिया हुआ है. So x आपको गिवन है, it is 2t square plus t plus 5 and acceleration पूछा है. So first you need to differentiate for v. So v क्या हो जाएगा? dx by dt. So इसका डिफरेंशिएशन 2 t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, t का हो जाएगा 1 plus 5 का हो जाएगा 0. So what we have the speed is it is 4t plus 1. Then further we need acceleration. So to find acceleration, it will be the differentiation of speed. So if I differentiate, 4 will remain, t का हो जाएगा 1 और जो remaining 1 है उसका 0. So acceleration क्या आ गया? ये 4 आ गया. ये तो constant है. मतलब you keep any value of t, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, whatever, the answer will be
4. So at any time is equal to 1, 2, 3, 4, 5, any time a is 4. कुछ भी करो एक आंसर 4 ही आएगा because there is no time पुट करने की जरूरत नहीं है. Then question number 16, let's see. तो क्वेश्चन में आपको थर्ड और फोर्थ सेकंड का रेशियो पूछा हुआ है. सो दैट मीन्स एस nth का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली है u इज इक्वल टू a/2 2n-1. ओके, द गुड थिंग इज u इज 0. सो इनिशियल स्पीड इट will start from rest. So all we need the ratio of s fourth divided by s third. So fourth मतलब a/2 will be there into 2 into n की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे -1 डिवाइड बाई a/2 अगेन विल बी देयर. थर्ड मतलब n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे. सो द आंसर विल बी a/2. बोथ द a/2 विल कैंसिल आउट. 2 into 4 8 minus 1 मतलब 7 and this will be 6 minus 1 that is 5. So the answer will be 7/5. So this can be simply represented. Answer will be 7/5. Question number 17. Let's see. So we have acceleration and this one is a tricky one or complicated one you can say. So it is 3t square minus 2t plus 2. Now we have the acceleration and the speed is asked. So we need to check because speed का differentiation करके acceleration आने वाला है. So we need to see whose differentiation is this. So we'll see it is t cube का differentiation minus it is t square, it is plus 2t, and one extra thing which is missing is constant. बिकॉज अगर एक सी रहा होगा लेट्स से, सो सी का यहाँ पे करने में सॉल्व तो 0 आ गया होगा ना आंसर. सो दैट्स व्हाई वी यूज अ कांस्टेंट हियर एंड वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम गिवन आइडिया एट t इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, एंड इन द क्वेश्चन v इज 2 मीटर पर सेकेंड at 0. So c is nothing but 2. So the final function of v will look like it will be t cube minus t square plus 2t plus 2. So this is our actual velocity function. Similar question practice में भी डिस्कस किया हुआ है. अभी हमसे पूछा है at 3 सेकेंड. So t is equal to 3 सेकेंड पे हमें बताना है. So v की वैल्यू 3, t की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे. So 3 का क्यूब it will be 27. चलो पहले लिख देते हैं 3 का क्यूब minus 3 का स्क्वायर plus 2 to 3 plus 2. So let's see how it will look like. It will be 27 minus 339 plus 6 plus 2, that is 8. So answer will be 26. So like that we can approach this question. Question number 18, let's see then. Question number 18. So as given है and velocity and acceleration पूछा हुआ है. The velocity when the acceleration is 0. So we need to find the acceleration first, then we'll find the velocity. So it is t cube minus 6t square plus 3t plus 0, 4. So let's find the v then. I'll directly write this time. It will be 3t square minus 6 will be there and 2t, so it will be 12t plus 3. So I have directly differentiated it. Now further differentiated to find a. So a it will be 6 into 2t minus 12. Now to check when a will be 0. So when a is equal to 0, हमें ये check करना है. So a is how much? It is 60 minus 12. That's 0. So 12 right hand side पे जाएगा. So this will be 12 and t will be 2 seconds. So at 2 seconds, this will become the 0. Okay, so acceleration will become 0 at 2 seconds. So that is the crux point. At 2 seconds, acceleration is 0, and the question is asked speed when the a is 0. So as we know, at t is equal to
2, a is 0. So we need to find the v at t is equal to so at t is equal to 2. What will be the v? So v का formula we already have. It is 3t square minus 12t plus 3. All we need is to keep the value v t as 2. So it will be 3 into 2 square. It is 4 minus 12 into 2 plus 3. So the answer will be 12. 12 cancel out हो जाएगा. 12 plus 3. The answer will be plus 3 and minus 12. It will be minus 9 then. So like that we can approach this question. So question number 18 is a lengthy one, but it is a very good question. Question number 18. Let's see question number 19 then. So in 19, what we have mass as 5 kg. We have initial speed of u is equal to 20 meter per second. If a force of 100 Newton is applied, so we have F is equal to 100 Newton. So first thing we must make clear that there is a formula of F is equal to M into A. So we know that F is 100, M is 5. So how much will be A? So we can just calculate A will be 20 meter per second square. Now, so this was a part of question which we can solve directly. But the question is, in 10 seconds, in the same direction as its velocity, then what will be the velocity? So how much time it applied? It applied for 10 seconds. Now in the same direction, so अगर वो in the same direction है, so in the same direction मतलब सोचो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था आगे की तरफ और हमने उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दिया. सो इसका मतलब v क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी ना. मतलब एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव टाइप का है. सो हमसे पूछा हुआ है स्पीड, देन वी विल फॉलो v इज इक्वल टू u प्लस at. सो द इनिशियल u was 20 plus a was 20 into time was 10. So the answer of final speed will be 220 meter per second. क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसमें लॉजिक क्या था कि सेम डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन और फोर्स, मतलब इट विल हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड. सो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 देन. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने बात किए थे रिलेटिव में. सपोज द पर्सन इज हेयर, अ बस इज हेयर. सो ये बस है एंड दिस इज अ पर्सन. अभी इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में गैप है 45 मीटर. सो गैप है इनके बीच में 45 मीटर. दे आर गोना मूव इन अ सेम डायरेक्शन. क्लियर? अच्छा, अभी पोजीशन क्या है कि हमें इसकी स्पीड नहीं पता. पर्सन की स्पीड लेट से कुछ है u, बट जो बस का u डैश है वो तो है 0. सिर्फ क्या है, बस के पास एक एक्सेलरेशन है दैट इज 2.5. सो बस के पास एक एक्सेलरेशन है. सो इसका मतलब अगर हम इसे रिलेटिव में देखें, सो रिलेटिव हम देखें, सो रिलेटिव में कैसे सॉल्व करेंगे, v कैसे निकालेंगे? बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. तो क्या हो जाएगा? u माइनस यू डैश. सबट्रैक्ट करते हैं. सो u हमें फाइंड करना है एंड u डैश इज 0, विच मीन्स वी नीड इज u. नाउ द एक्सेलरेशन विल बी जो इसका a डैश है और इसका एक्सेलरेशन, सो दैट इज 0. से 2.5 माइनस 0. ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पर ये होती है कि अगर आपने पहले इसको लिया हुआ है, सो एक्सेलरेशन में भी पहले इसको ही आपको यूज करना चाहिए. सो इसका मतलब ये है कि आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए 0 माइनस 2.5. So at the end, if you see, the acceleration will be minus 2.5. So now what we have distance, we have acceleration. अभी हमें stopping चाहिए कि कितने देर में उस वाले पॉइंट तक वो पहुंच जाएगा. टाइम हमें निकालना है. So which equation we can actually use? So we can use second equation here.
So using second equation, so let's use the second equation. What is S is equal to ut plus half at square. So as we know, it is 45. U we do not know, so I'll just write U only. So U into T plus half into, actually there is a problem. First we need to find the time. First we need to find the time when they will reach there. So then only you can use that second equation. Okay, or you can just use the concept of stopping distance. Okay, so we do not need to use the second equation. Why? Because there is no discussion of time, neither it is asked. Okay, so we can just use the stopping distance. So stopping distance देख लेते हैं. So stopping distance हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, it is u square upon 2a type. So stopping it is 45, u square we need to find, and 2 into acceleration is 2.5. It is retarding, that's why we know it will stop. So this will be 2.5 into this, it is 5. So u square will be 45 into 5. Okay, so 45 we can write 9 into 5, so it will be 3 into 5. So it is 125, and u can be calculated. So it will be, sorry, my mistake. 45 we can write 9 into 5. So 45 we can write 9 into 5 into 5, and 9 is a square root of 3. So u will be square root of these. So it will be 3 into 5 means 15. Okay. So it was a good question जिसपे थोड़ा सा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमने लगाया और स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 21 देन. Okay, question है, an object is projected upward with the speed of this, then it will strike the ground after. So हमें पता है total time to reach again the ground, it is 2u by g. You need the direct formula. So it is 2u by g. So 2 into u is 75 by g is 10. I could have used the 9.8 also, but it's better to use 10. So it will be, this will be divided by 5. So it will be 5 2 times, and then it is 15. 2 will also cancel out. What will remain? It will be 15. So we can just solve like that only. So 21 is a easy question. 22. The height of the tower. So H max is asked. So H max is asked. But the question says it reaches in the top at t is equal to 5 seconds. If it reaches at in 5 seconds, so it will come back at the same point in 5 seconds ना. So इसका मतलब अगर किसी को 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा, so इसका मतलब नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड. So नीचे आने का याद है आप लोग को, आपको याद होगा कि for coming down what we use, the time is root 2h by g. If you remember the time to reach the downward, so we can, what we can do, we can just use the square. So it will be t square is equal to 2h upon g. So we can just, h will be g into t square by 2. So let's keep the values then. 10 into t is how much? 5 seconds. So 5 square by 2. So it will be 125 then. That's how we can solve the question number 22. Let's see the 23 then. 23 में पूछा हुआ है, we have u as 80 feet per second. So if the speed is in feet per second, we have the acceleration as 32 feet per second square. Now what is asked in the question? The ball will be at max height from the ground.
तो मतलब टाइम पूछा हुआ है, नॉट द मैक्स हाइट। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, u बाई जी, सिर्फ ऊपर पहुंचने का टाइम पूछा हुआ है। सो इट विल बी 80 डिवाइडेड बाई 32। सो द आंसर विल बी नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग। सो इट विल बी 2 पॉइंट और 40 आ जाएगा, ठीक है, 140। सो मतलब नियर अबाउट 2.4 टाइम्स आ जाएगा। सो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट चेक करना था कि 2 से ज्यादा है, दैट मीन्स इट विल बी बिटवीन 2 and 3। नंबर 24 देन, नंबर 24, a body thrown upward with some velocity reaches a maximum height of this। सो हमें एच मैक्स इस बार पता है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। बट क्वेश्चन में हमें दिया है एच मैक्स इज 20। सो वी कैन फाइंड द यू स्क्वायर, देन it will be 2 into g is 10. So the answer of u square will be 20 into 20. So the u will be, I can write instead of u it like this. So u will be 20 meter per second. But okay, question ये नहीं था, क्वेश्चन में u नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है another body with the double the mass thrown up with double the initial speed will reach how much। so हमें पता है mass has no effect। so हमें पता होना चाहिए mass has no impact। so mass का कोई भी impact नहीं है, सिर्फ हमारा u कितना है, u जो u डैश है लेट्स से वो है ट्वाइस, देखें ट्वाइस द इनिशियल स्पीड, मतलब 2 times of u। so it will be 2 into 20, so this is 40। so actually क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 से अगर थ्रो करेंगे तो कितना मैक्स जाएगा। so we can just use the formula which max as u square upon 2g, but now the u is 40, so I'll write 40 into 40 upon 2 into g is 10। so this will cancel out, the answer will be 2, that means 80। so the answer here will be 80 meter। Then we can use, see the question number 25 then। Question number 25 is also straight, as we know that the formula of t is root 2h by g। so 2 will remain as it is, g will remain as it is, I can say that t depends upon root h only। so if the question asks the ratio of the time taken by to reach the earth, so it will be t1 by t2 is equal to root over h1 by h2। for 2 different heights it will be like that। so इसका मतलब पहली हाइट थी h और नेक्स्ट हाइट थी 2h। so आंसर कैंसिल आउट होगा, it will be 1 by root 2। so like that we can solve the question number 24। तो इस तरीके से पेपर देख सकते थे। सारे क्वेश्चन यूजुअली सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट और क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं। इवन तो उसके बाद भी किसी का कुछ डाउट रह जाता है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी और टेक्स्ट मी। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।